بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو خبر دیں مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال کے باعث پی آئی اے نے اپنا خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ پی آئی اے کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل کی گئی ہیں۔ پروازیں ابتدائی طور پر کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال کے باعث پی آئی اے نے اپنا خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا۔ جی، مشرقی وسطی کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس پر پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے کا یو اے ای، بحرین، کویت اور دوحہ کی پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ پروازیں کل 1 مارچ شام تک کے لیے معطل رہیں گی، جبکہ سعودی عرب کے لیے پروازوں کو ری روٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسافروں کو ایئرپورٹ آمد سے قبل ہی پی آئی اے کال سینٹر یا فلائٹ انکوائری سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی، خورشید رحمانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نیکیوں کا موسم بہار، شاہین فاؤنڈیشن کی جانب سے روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام۔ چیئرمین عماد الدین کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کے تحت شاہراہ قائدین پر روزانہ 400 سے زائد افراد کو افطار فراہم کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ مبشر بتائیے گا۔ جی، جیسے کہ ماہ ایام میں اس وقت جو ہے وہ ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن کی جانب سے روزے داروں کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر ایک نے دکھایا، اس وقت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ روزے دار جو ہے وہ روزہ افطار کر رہے ہیں، جس میں بچے، بوڑھے اور بزرگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ ساتھ ہی اس جو ٹرسٹ کے جو فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں عماد الدین صاحب، سر بتائیے گا اس کار خیر میں کتنے سال سے اس طرح روزہ افطار کروا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارا 6واں سال ہے اور اس میں یہ افطار کروا رہے ہیں، اور اس کا میرے والد صاحب نے مجھے اس کام پہ لگایا، اور کیونکہ رمضان میں آپ کو اپنا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، تو میں نے یہ شروع کیا روڈ ایکٹیویٹی سے کہ کھانا لے کے نکلے اور مختلف جگہوں پہ کرانا شروع کیا، اور پھر 1 سال کے بعد پھر میں نے یہ جگہ پرمنٹ کی اور یہاں پہ ہم کروا رہے ہیں مور دین 400-500 لوگوں کو ڈیلی افطار۔ اور ایک الگ آپ کو تسکین ملتا ہے جب آپ کے پاس یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی آ جائے اور آپ روزہ کھول لیں اور وہ آپ سے آپ کا کھجور مانگ لے اور آپ وہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو، ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ کسی کو ایک نوالا کھلا دیں، تو یہ اوپر رب چنتا ہے بندوں کو اور رب ہی کروا رہا ہوتا ہے ہمیں۔ صحیح معنوں میں اگر معاوضہ دیکھنا ہے نا، تو آپ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ کہ کس طرح لوگ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں اور کس طرح لوگ آ کے یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جی، جیسے کہ چیئرمین ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن کے، میرے ہمراہ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کار خیر کے کام کو جو ہے وہ 5 برس ہو چکے ہیں اور مزید بھی آگے چل کے جو ہے وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جی، کرنگی الواسے ٹاؤن کے مکین پانی کی شدید قلت کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ گھروں میں کئی دن تک پانی کی بوند تک نہیں آتی۔ علاقہ مکین مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ کرنگی الواسے ٹاؤن میں نلکے خشک پڑ گئے، علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کرنگی الواسے ٹاؤن کے مکین پانی کی قلت کے باعث کرب میں مبتلا ہیں۔ گھروں میں کئی دن تک پانی نہیں آتا، نلکے خشک پڑ گئے ہیں اور روزمرہ زندگی مفلوج ہو چکی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 3 دن گزر جاتے ہیں مگر پانی نہیں آتا، بچوں کے لیے پینے کا پانی بھی میسر نہیں، جس سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ رہائشی کہتے ہیں کہ ہر 2 دن بعد مہنگے داموں ٹینکر خریدنا پڑتا ہے اور یہ خرچ اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم 2007 میں آئے تھے، شروع میں آتا تھا پانی، پھر بند ہو گیا، اب آتے ہی نہیں ہے پانی، ٹینکر ہی ڈلتے۔ 4-5 سال ہو گئے ہم لوگوں کو پانی کا بڑا مسئلہ، یہاں پہ پانی نہیں آتا۔ پہلے پانی آ رہا تھا، ابھی ان لوگوں نے لینڈ ڈالی ہے باہر، اٹک بم سے آگے ایک لینڈ ڈلنے والی، وہ نہیں ڈلی ابھی تک، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہے۔ تو ابھی ہم لوگ ٹینکر ڈالتے ہیں، پہلے ٹینکر یہ تھا 4,500 روپے کا مل رہا ہے، ٹینکر 6,000 روپے کا مل رہا ہے، تو وہ بھی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ہمیں لانا پڑتا ہے، تو بہت پریشانی، پانی کا بل نہیں آتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بل آئے اور ہمیں لائن سے پانی ملے، 3,000 روپے بل ہوگا تو ہم دیں گے، لیکن ہمیں پانی ملے تو، لیکن ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کے بحران کا فوری اور مستقل حل نکالا جائے۔ کرنگی 5.5 نمبر سے 100 کوارٹر جانے والی مرکزی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود سڑک کی مرمت نہیں کی گئی۔ بڑے گھڑے حادثات کو دعوت دے رہے ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ کرنگی 5.5 نمبر سے 100 کوارٹر جانے والی مرکزی سڑک 2 سال سے زائد عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے۔
टूटी हुई सड़क और उखड़ा हुआ कारपेट शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। रिहायशियों के मुताबिक 2 माह कबल पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई, जिसे अब तक बंद नहीं किया गया। 2-3 महीने हो गए ये खुदाई हुई भी है, तो खोदाई हो गई है, अब ये खड्डा खोल के रखा हुआ है। और ये रही बात सड़क की, ये तो 2 साल हो गए तो ऐसी पड़ी है। ये लवारी शहर है हमारा और खड्डे खड्डे, देखो ये गाड़ी परेशान है तो सारी पीछे ट्रैफिक जाम हो जाती है। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी हिचकोले खाती हुई गुजरती है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो रही है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ये मैडम बहुत टाइम हो गया और ये 2028 तक का इनका ये बना हुआ है कि बोले 2028 तक ये ऐसी खड्डे रहेंगे। गाड़ियों का इतना नुकसान होता कोई देखता ही नहीं है इन लोगों को, और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस हमारे को तंग करती है। अब इस पे हम लोग क्या करें, परेशान हैं हम तो। हमारे को इतना कारोबार भी नहीं लगता, किराए की गाड़ियाँ हमारे पास। शहरियों ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर सड़क की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि आमदोरफ्त बहाल हो और रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल पर आ सके। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाइयाँ, मुत्तहिदा पाकिस्तान अफवाज की कार्रवाइयाँ भरपूर एतमाद का इजहार। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, वतन की मिट्टी पुकारे तो हम ज़रूर जवाब देंगे। मोदी ने तालिबान को वसाइल दिए, हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। भारत अफगान रजीम और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। MQM पाकिस्तान की पाक अफवाज की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। औरंगी टाउन में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। कारकुनों की बड़ी तादाद परचम और बैनर लिए जमा हो गई। शुरका से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम मार्का हक से मार्का मईशत की तरफ जा रहे थे और ये बात भारत को मंजूर न थी। इन्होंने कहा कि कौम वजीर आजम और फील्ड मार्शल के साथ खड़ी है। हमारे शहरियों का भी खून नहाक बहा रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के जो अहलकार हैं, जो मुहाफिज पाकिस्तान है, जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी से हमें हमकिनार किया, हमें इत्मीनान दिया, मायूसी से निकाला, उम्मीद की तरफ ले गए। तो आज जब हम कहीं जाने लगे थे, आज पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे बच्चों के रोजगार के लिए खुलने लगे थे। रुकने कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक ने कहा कि किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखा तो इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। इनका कहना था कि अफगान हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त कर ले। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज के शान बशाना खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि भारत को सबक सिखाया था, अब अफगानिस्तान को भी सिखा रहे हैं। पिछले 6 महीने साल से दरअंदाजी की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम जब एक साथ हो जाते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार हो जाते हैं। जब इस तरह दहशतगर्दाना हमले हमारी सरहदों पे होंगे, हमारे शहरों में होंगे, हम ईंट का जवाब इंशाअल्लाह पत्थर से देंगे। MQM के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद के तमाम शोबाजात गुज़िश्ता 6 माह से बंद। लाखों रुपए की मशीनरी ख़राब होने का खदशा भी पैदा हो गया। लाखों रुपए की दवायात भी ख़राब होने का इम्कान बढ़ गया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट थी। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद का बुरा हाल, जहां अस्पताल के 400 मुलाजमीन गुज़िश्ता 8 माह की तनख्वाह से महरूम हैं और गुज़िश्ता 6 माह से अस्पताल का ICU, नर्सरी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लैब मुकम्मल तौर पर बंद है। मरीज बच्चे और वालिदैन को इंतहाई परेशानी का सामना है। मरीज बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह न मिलने पर उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। ये हॉस्पिटल में ये हाल अभी से नहीं है, ये पिछले 10 साल से ऐसा ही है। इन्होंने पिछले साल भी सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह दी, उसके बाद हॉस्पिटल फिर बंद हो गया। अभी इन्होंने फिर यही किया है, अब 10 महीने हो गए सैलरी आ नहीं रही। इन्होंने क्या किया, 10 महीने की सैलरी है और 2 महीने की दे के अब आप बताएं कि एक गरीब आदमी अपना घर किस तरीके से चला सकता है। ना मेडिकल है, ना सैलरी बढ़ी है हमारी, और ना कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी हमारे को नहीं दिया अभी 1 साल का। तो बताएं, हम लोग जहाँ से जॉब छोड़ के आए थे, इस चक्कर में आए थे, चलो एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें यहाँ के इतनी परेशानी होगी और हम जितने परेशानी इतना हम ही जानते हैं। अल्लाह बेहतर है। हमें सिंध गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे जो भी ड्यूज़ हैं हमारे बहाल किए जाएँ, हमारे ड्यूज़ दिए जाएँ। अस्पताल के इंतहाई अहम शोबाजात गुज़िश्ता 6 माह से बंद होने से लाखों रुपए की मशीनरी खराब, जबकि लाखों रुपए की अद्वियात भी खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जो हुकूमत से रकम मिली थी उसमें से मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह अदा कर दी है। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिन, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचहू ने जिना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने गायनी वार्ड के हदूद में रजीम का पौधा भी लगाया और मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। वज़ीर सेहत ने गायनी वार्ड की खदमात को सराहा। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखी।
वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेजो ने जना अस्पताल का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद शेर और गायनी वार्ड 9B के इंचार्ज डॉक्टर निगत शाह ने किया। इस दौरान वज़ीर सेहत ने माँ रहे सलामत के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की, गायनी वार्ड की हदूद में नीम का पौधा लगाया और ज़ेर इलाज ख़वातीन से खैरियत मालूम की। वज़ीर सेहत ने गायनी वार्ड समेत पूरे अस्पताल में बेहतरीन खदमात की तारीफ की। within the tertiary hospitals to set up these kind of services, and I think that is the real way to reduce maternal mortality. गायनी वार्ड्स 9B की इंचार्ज प्रोफेसर निगत शाह, SOGP की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शबीन नास और डॉक्टर रेखा ने बताया कि अस्पताल में हर तरह की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अस्पताल में हर तरह की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। So we are seeing, तो मैडम का जो विजन था, so we are taking forward. हम यहाँ पे नॉर्मल लॉस लेते थे और जो हाईएस्ट प्रेगनेंसी होती थी उनका कोई अच्छा मतलब मैं कहूँगी आउटकम नहीं होता था। अगर हम कॉम्प्लिकेशन के लिए इक्विप्ड नहीं हैं तो वी विल कीप लूजिंग आवर मदर्स। शाह फैसल कॉलोनी में एक ही खानदान की जानिब से इफ्तार का अहतमाम किया गया। चाचा, भतीजा, मामू और भांजा अपनी मदद आपके तहत खिदमत में मसरूफ़ ये ख़ानदान गुज़िश्ता 10 बरसों से शाह फैसल पुल के नीचे रोज़ेदारों को बाकायदगी से रोज़ा इफ्तार करवाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब से कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा दुरे शहवार हमें अपडेट कर रही थी, आपको दिखाते हैं। आज रमज़ान मुबारक के 10वें रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ पर एक फैमिली के कुछ मर्द हज़रात ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करवाने लोगों को, यहाँ मेरे बाएं हाथ पे मर्द हज़रात का एहतमाम करवाया जाता है इफ्तार का, जिसमें 12 देगे ये मामूल की बुनियाद पर जो है मंगवाते हैं और यहाँ पे लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। और यहाँ मेरे दाएँ हाथ पर ख़वातीन के पर्दे के साथ इन्होंने एहतमाम किया है रोज़ा इफ्तार का। अच्छा जी, ये किस तरह से कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं और किस चीज़ ने इनको इस तरफ माइल किया कि लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाना है? इसमें बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र मौजूद है। ये बताइएगा कितने अरसे से आप लोग एहतमाम कर रहे हैं, किस चीज़ ने आप लोगों को इस तरफ माइल किया कि लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाना चाहिए? हम लोग माशाल्लाह से यहाँ पे 10 साल हो गए तकरीबन करते हुए तमाम सारी चीज़ों का। बाकी ये दरगाह बनी हुई है दादा की, उसके सारे सवाब के लिए हम लोग ये सिलसिला जब से हमारा चलता आ रहा है माशाल्लाह 10 साल हो गए करते हुए। तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, कज़न्स हो गए, चाचा हो गए, सब मिल के हम लोग करते हैं। अच्छा, कितनी देगी होती है? देखिए स्टार्टिंग हमारी जो है 6 देग 8 देग से होती है, फिर जिस तरह आवाम बढ़ती रहती है तो आज 10 रोज़ पे हम खड़े हैं माशाल्लाह से और 12 देगे हमारी आई हुई हैं, तो ये 15-18 तक हमारी पहुंच जाती हैं, 30 रोज़े तक। अच्छा, आप लोग किस तरह से करते हो? सवाल बताया चाचा आपको बता रहे थे। जी जी, ये इसमें चाचा भी हैं सारे हमारे और हम लोग कज़न्स भी हैं सारे, इस तरह मिलके करते हैं। यहाँ पर ये फैमिली के मर्द हज़रात जो हैं, जैसे ताया, चाचा, भतीजा, भांजा, ये सारे मिलके इस तरह से जो जॉब करने वाले, बिज़नेस करने वाले हैं, वो सारे पैसे एक जगह जमा करते हैं और इस तरह से लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 देगें रखी गई हैं और 12 देगों को इस तरह से ये लोग सर्व कर रहे हैं, खुद खड़े होके, खुद थाल में डाल के लोगों को दे रहे हैं और लोगों को यहाँ पर मदऊ करें कि यहाँ पर बैठ कर आएँ और रोज़ा इफ्तार करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन के सामने महकमा सिविल डिफेंस के टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मिर्ज़ा मुरसलीन बेग ने कहा कि वाक़े की बुनियादी जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 पर आयद होती है, क्योंकि मौसर रेस्क्यू इक़दाम ना होने के बायस जानी नुकसान में इजाफा हुआ। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। गुल प्लाजा में रेस्क्यू नाकामियों पर सवाल उठ गए। जुडिशल कमीशन के रूबरू रेस्क्यू इदारों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के रूबरू सिविल डिफेंस के टेक्निकल इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन बेग ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुरसलीन बेग ने कहा कि आग की इतला 10:15 बजे मिली, लेकिन पहला फायर टेंडर 11:55 पर पहुंचा। वाकई की बुनियादी जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 पर आयद होती है। उन्होंने बताया कि 2024 और 2025 के इंस्पेक्शन में फायर सेफ्टी इकदाम नाकाफी पाए गए थे। हिदायत जारी की गई थी, मगर अदालती अमल दरामद न होने के सबब चालान जमा नहीं हो सका। मिर्जा मुरसलीन बेग के मुताबिक आग क्लास B नोयत की थी, जिसमें फौरी तौर बिजली मुनक़ता करना लाजमी नहीं था। बिजली के कबल इस वक्त बंदिश ने इमारत में अंधेरा और खौफ पैदा किया, जबकि बंद एग्जिट दरवाजे और धुएं ने इनखला मुतासिर किया। इब्तदाई आग बुझाने के आलात मौजूद थे, लेकिन रेस्क्यू इदारों ने मौसर तौर पर
फोम या केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। कमीशन ने इल्जामात पर चीफ फायर अफसर DG रेस्क्यू 1112 को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। ऑयल टैंकर की टक्कर से कमसिन बच्ची के जाम बहक और 2 अफराद के जख्मी होने का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शुरकी में मुलजिम अब्दुल कादिर की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम पर लगाई गई दिफात काबिल ज़मानत हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि मुलजिम को ज़मानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर ज़मानत पर इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिए और 2 मार्च को मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल तलब कर लिए। मुलजिम को मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। हादसा रवां हफ्ते सुबह सवेरे कोरंगी क्रॉसिंग पर पेश आया था, जिसमें 3 साला सायरा जामबहक जबकि 1 साला सुबहान और 18 साला नौजवान जख्मी हुआ था। वाक़े का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज हुआ था। शहर में गैर कानूनी पार्किंग का रुझान बढ़ने लगा। शहरी ने पंजाब कॉलोनी में वाक़या पार्किंग के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पंजाब कॉलोनी में डबल लेन पार्किंग की जाती है और सूबाई हुकूमत की पाबंदी के बावजूद पार्किंग फ़ीस ली जाती है। पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का मसला बढ़ गया है और एम्बुलेंस भी वहाँ फंसी रहती हैं। पार्किंग माफिया के कारिंदे वहाँ मौजूद होते हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान लियाकताबाद में जीने दो कराची को अनवान से अवामी इफ्तार और जलसा से खिताब कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुन्निम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, मोहतरम कामरान सिराज साहब, अमीर ज़िला गुलबर्ग बस्ती, मोहतरम फराज हसीब साहब, टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब, टाउन चेयरमैन गुलबर्ग, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी मुंतखब यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, ख़वातीन काउंसलर्स, जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़िम्मेदारान और लियाकताबाद के मेरे बहुत ही अजीज़ बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज यहाँ इस स्टूडेंट ग्राउंड में हम मौजूद हैं और ये सारे इलाके और ये ग्राउंड और ये पार्क्स जो जहाँ धूल उड़ती थी, कचरा था, गंदगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फराज हसीब साहब और उनकी पूरी टीम ने, जमात इस्लामी के मुंतखब लोगों ने इन्हें गुलो गुलजार कर दिया है, अपने बच्चों के लिए खेलने के काबिल बनाया है। इसी तरह सिर्फ यही काम नहीं किया, बल्कि लियाकताबाद में जब हम आज से 3 साल पहले आते थे तो बेशुमार गलियां ऐसी थीं जहां रास्ता ही नहीं मिलता था और कचरे के ढेर पड़े हुए थे और कीचड़ होती थी। खास तौर पर ये जो सिंधी होटल वाली सड़क है, ये तो कभी हमने बनते हुए देखी नहीं। एक हिस्सा बनता था तो दूसरा टूट जाता था, दूसरा बनता था तो पहला टूट जाता था। सड़कों की तामीर भी और उसके साथ साथ सीवरेज के मसाइल भी, फिर जो कुछ भी किया जा सकता है, जो पार्क इनके पास थे वो सारे पार्क इन्होंने बना दिए लियाकताबाद में। जो स्कूल्स टाउन के पास सरकारी स्कूल इनको मिले थे वो सारे के सारे इन्होंने डेवलप कर दिए हैं, डिस्पेंसरी बना दी है और जो काम ये कर सकते थे वो इन्होंने कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि फंड्स इनको मिलते नहीं हैं, जो पैसे ओजेटी की मद में आते हैं वो तनख्वाहों में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने बहुत ही महदूद वसाइल में इन्होंने खिदमत करके दिखाई है और इस वादे को पूरा किया है जो हमने आपसे किया था। हमने आपसे ये कहा था कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियारात छीनेंगे, इंशाअल्लाह उसकी जिद्दोजहद करेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जमात इस्लामी की पूरी लीडरशिप को कि जो इस वक्त भी इस शहर कराची के 3.5 करोड़ लोगों के हुकूक के लिए लड़ रही है, जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने हिस्से का काम भी पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं।
منسٹری آف فارن افیئرز لانس آفس کراچی میں زیر اہتمام ڈپلومیٹک افطار، جس میں مختلف ممالک کے ڈپلومیٹس شریک ہیں، جبکہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم نے رمضان کی مناسبت سے شلوار قمیض زیب تن کی۔ کہا رمضان کی رونقیں اس وقت عروج پر ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ زبیر بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیے اس وقت ہم موجود ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اور منسٹری آف فارن افیئرز موفا کی زیر اہتمام ڈپلومیٹک افطار کا شاندار انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ مختلف ممالک کے جو سفارتکار ہیں آج جو ہے وہ مہمان بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر لانس ڈوم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ What would you like to say regarding today's event? I would like to say Ramadan Mubarak to everybody who's listening. It's a great pleasure to be here tonight. I want to thank the Ministry of Foreign Affairs and especially Director General Mr. Irfan Sumro for a very wonderful event, and I particularly appreciate that the subject of tonight's iftar is religious tolerance, which I think is a wonderful message in this month of peace and reflection and tolerance. So thank you to the Ministry of Foreign Affairs for organising this event, and it's a wonderful time to be in Karachi. Sir, this is your second time to celebrating the month of Ramadan. So how you are watching the diversity of this beautiful festive? It's just a wonderful time of the year. I really notice how people do reflect, how two people look inward and think about themselves, think about their families, think about their neighbours, and as a moment of reflection, but also of being kind to neighbours, of that tolerance and understanding. And I think everyone renews themselves spiritually. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی پر شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاک افغان کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 5108 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,68,062 کی سطح پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے ایک ہفتے میں سرمایہ کاروں کو 672 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک افغان کشیدگی کا اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثر، کشیدہ حالات کے باعث سرمایہ کار محتاط۔ ہفتہ بھر پی ایس ایکس میں شدید مندی کا ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 5108 پوائنٹس کی بڑی کمی سے 1,68,062 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,74,336 پوائنٹس پر ہفتہ وار کم ترین سطح 1,62,953 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک ماہرین کی رائے ہے کہ پاک افغان کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط رہے۔ پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ جو کشیدگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو مارکیٹ نے اس پہ افیکٹ آیا تھا، لیکن مارکیٹ ماشاءاللہ ایبزارب ہو گیا اور پاکستان جو دیکھا جائے تو بہت مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اب مینٹین ہو جائے گی۔ لیکن آج پھر جیسے آپ نے دیکھا کل رات میں جو افغانستان کا اور پاکستان کا جو کلیش ہوا، اس کی وجہ سے تھوڑی مارکیٹ آج صبح مائنس کھلی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آج تھوڑی سی شاید ہو سکتا ہے کہ فنڈس کی سپورٹ آ جائے مارکیٹ میں اور گورنمنٹ کے ادارے جیسے میوچل فنڈ وغیرہ ہیں وہ بائنگ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آج اچھی بند ہو۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 154 ارب روپے مالیت کے 2,99 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز کی قیمتوں میں کمی کے باعث سرمایہ کاروں کو مجموعی طور پر 672 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جس سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 672 ارب روپے کم ہو کر 18,930 ارب روپے کی سطح پر آ گئی۔ غیر ملکی کارپوریٹس کی فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ بیرونی سرمایہ کاروں نے 1 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے شیئرز فروخت کیے۔ مقامی انفرادی سرمایہ کاروں نے بھی 1 کروڑ 15 لاکھ ڈالر مالیت کے شیئرز فروخت کیے۔ تاہم بینکس نے مارکیٹ کو سہارا دیا اور 2 کروڑ 34 لاکھ ڈالر مالیت کے شیئرز خریدے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ غیر یقینی صورتحال کے باعث آئندہ ہفتوں میں بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔